Good morning. Can you all say good morning? Suprabhat. Good morning. I realize that this year and the previous year might not have been great years for many of us. और मैं जानता हूँ कि ये साल और इसके पिछले साल दोनों हमें से अनेक लोगों के लिए उतना अच्छा एक अनुभव नहीं था. We might have experienced things that we might not have planned for. हमने ऐसी बातों का अनुभव किया हमारे जीवन में जिसका हमने कभी सोचा नहीं था और कभी उसके लिए हमने कोई प्लानिंग की And we नहीं. struggled with different things that we have never struggled with before. और हमारे जीवन में इन पिछले 2 सालों में हमने ऐसे बातों को संघर्ष किया जो पहले कभी हमारे जीवन में हमने संघर्ष नहीं किया. Today morning when I woke up and I put the suit on, आज सुबह उठकर जब मैंने ये सूट पाया, I just realized that this suit that I had stitched about 4 to 5 years back has suddenly become very tight for me. और मुझे ये एहसास हुआ कि 4-5 साल पहले जो सूट ये जो मैंने बनवाया था मेरे लिए अभी बहुत टाइट हो गया है. Anyone has, some clothes that you have purchased 4 or 5 years back, you don't fit into it any longer? Can I see hands? आप में से कोई ऐसे है जो ऐसे अनुभव करते हैं 4-5 साल पहले के कपड़े भी fit Especially now that Christmas has come, you're going to get more and more tighter. The clothes are going to get more and more tighter. और खासकर अभी क्रिसमस के इस माहौल में हमारे कपड़े टाइट होते जाएंगे. And though we feel like the past 2 years have not been good for us, और चाहे हमें ऐसे लगे कि पिछले 2 साल हमारे लिए अच्छा नहीं था, our clothes tell us that God was good to us. लेकिन हमारे कपड़े हमसे कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ भला रहा. God has fed us, God has clothed us, God has blessed us with many, many things in this world. परमेश्वर ने हमें खिलाया, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और इस संसार में परमेश्वर हमारे साथ रहा. We have so much to be thankful to God for. हमारे पास उसके प्रति आभारी होने के लिए बहुत कुछ है. Now the previous year and this year, how many of you celebrated your birthday? Can I see your hands? और इस साल और उस पिछले साल आप में से कितने लोगों ने अपने जन्मदिन को मनाया? Some of you celebrated, some of you did not. आप में से कुछ लोगों ने जन्मदिन का आनंद उठाया, मनाया, कुछ लोगों ने नहीं किया. Some of you wish, I wish Corona was not there so I could have celebrated it in a grander way. और आप में से कुछ लोगों ने चाहा कि काश कोरोना न होता ताकि मैं जन्मदिन को और अच्छी रीति से मनाता. When you celebrated your birthday, जब आपने अपना जन्मदिन मनाया, how many of your friends called you up and remembered your birthday and called you up and said, "Hi, happy birthday"? आप में से कितने लोगों के मित्रों ने याद कर आपको कॉल कर बोला कि हाय हैप्पी बर्थडे? Because there is Facebook, they will send you messages, "Happy birthday." क्योंकि फेसबुक है, फेसबुक देखकर पता चल जाता है तो उसके द्वारा वो हैप्पी बर्थडे का मैसेज. How many of your friends remembered you during your birthday? Can I see your hands? आप में से कितने लोगों के मित्रों ने आपको याद रखा आपके बर्थडे के दिनों में? In so certain family, if you're in a WhatsApp family group, somebody will say happy birthday and then everybody will jump in and say, "Yes, happy birthday to you." यदि WhatsApp पे फैमिली ग्रुप है तो उस ग्रुप में कोई एक बंदा डालेगा हैप्पी बर्थडे, फिर सब लोग हाँ हैप्पी बर्थडे आपको हैप्पी बर्थडे करके डालने लगते हैं. But sometimes we wish we had more people to remember our birthdays. लेकिन कई बार हमें ऐसे लगता है काश और ज्यादा लोग होते जो मुझे याद रखते या मेरे बर्थडे को याद रखते. Most of us will remember a kind person's birthday. हमें से अधिकतर लोग एक दयालु व्यक्ति या जो भला काम करने वाले व्यक्ति के बर्थडे को याद रखेंगे. Somebody who has helped us sometime in life, we will remember their birthday. We are grateful to them and so we remember their birthdays. हमारे जीवन में कभी न कभी किसी ने जिसने हमें मदद किया है तो उसका बर्थडे हम याद रखते हैं क्योंकि वो हमारे प्रति अच्छा रहा तो हमें उनके प्रति एक आभारी दिल है तो उसका बर्थडे हम याद रखते हैं. Sometimes we remember a great person's birthday, a person who has done much good for the land or for the community. We will remember their birthday and we will celebrate their birthday. कई बार हम एक बहुत महान व्यक्ति के बर्थडे को याद रखते हैं जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उनको याद रखते हैं. But why is Jesus' birthday celebrated all around the world and different countries by different people groups? लेकिन ऐसा क्यों है कि प्रभु यीशु का जो बर्थडे है वो संसार भर में अलग-अलग जाति के लोग क्यों मनाते हैं? I realize for many of you this is your first time you're coming for a Christmas program, or you might be celebrating Christmas, or you might be even seeing a church on a Christmas day. और मैं समझता हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए पहली बार आप हो सकता है क्रिसमस प्रोग्राम में या पहली बार आप किसी चर्च में गए. I want to tell you the story of Christmas. मैं आपको क्रिसमस की कहानी बताना चाहूँगा. There was a young lady and a young man. They were engaged to be married. एक नौजवान युवती और कन्या और एक नौजवान युवक, इनका जो है मंगेत्री हो रखा था, मंगनी हो रखा था.
जिसे हम पंजाब में रोका कहते हैं, रोका हो रखा था शादी के लिए। And so as they were preparing for marriage, the lady's name was Mary and the boy's name was Joseph. और वो जो कन्या युवती थी उसका नाम था मरियम और वो युवक का नाम था यूसुफ। But before they could get married, an angel comes to Mary and says, listen, you're going to have a child. बल्कि इनकी शादी होने से पहले एक स्वर्गदूत इस स्त्री को प्रकट होता है और उसको कहता है कि तुझे एक बच्चा होगा। You read that, if you have your Bibles, you can read that in Luke chapter 1 verses 26 to 38. अगर आपके पास बाइबल है तो लूका रचित सुसमाचार जो पुस्तक है उसका पहले अध्याय के 38वें आयत में हम 26 से लेकर 38 तक 26 से लेकर 38 तक के भाग में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। When her fiancé got to know, or Joseph got to know that she was going to have a baby, और जब उसके मंगेतर को इसके बारे में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, he wanted nothing to do with it. He said, I'll just divorce her very quietly. तो उसने सोचा कि अब मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मुझे क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, मैं कैसे इससे शादी करूंगा, तो चुप से मैं इसको तलाक दे देता हूँ। But then an angel appeared to him also in a dream. लेकिन स्वर्गदूत उसको तब प्रकट होता है and told him, listen, she did not do anything wrong. और उसको ये समझाया कि देख, वो जो जिससे तेरी विवाह होनी है वो कन्या, उसने कुछ भी गलत किया नहीं है, But rather God has blessed her. लेकिन उसके अंदर जो बच्चा है वो परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, परमेश्वर का संतान है। And he is a savior that you have been waiting for so long, and it has been mentioned in your sacred scriptures. और जो आपके पुराणों में, आपके पुस्तकों में लिखी गई एक संसार को छुड़ाने वाला, बचाने वाला मसीहा के बारे में जो लिखा गया है, ये वो बच्चा है जिसने इसके अंदर इसके अंदर जन्म लिया है। And Joseph was such a decent man and a righteous man that he did not divorce her, but rather he kept her as his wife. He took her along as his wife, and they had this baby child. और लेकिन तो इसीलिए यूसुफ ने स्वर्गदूत के प्रति आज्ञाकारी रहा, उसकी बात को माना और मरियम को स्वीकार करता है, अपने पत्नी के रूप में वो स्वीकार करता है। I'll be talking more about Joseph in the same location tomorrow at 10:30. We will be having our Sunday service. और यूसुफ के बारे में कल इसी जगह पे, जब हमारा संडे का चर्च यहीं पे लगता है 10:30 बजे, कल मैं यूसुफ के बारे में ज्यादा आपसे बात करना And चाहूंगा। Joseph, the person Joseph is an amazing person because he shows us what God the Father looks like. देखिए यूसुफ जो है इस एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति है, वो उसके स्वभाव में हम परमेश्वर पिता के स्वभाव को देख पाते हैं। But let me just continue with the story. When the time came for the child to be born, there was a decree by Caesar that they needed to take a census, and so everyone had to go back to their own homeland. और इस कहानी को मैं आगे बताना चाहूंगा कि जैसे उस बच्चे के जन्म का समय निकट आया, तो वहाँ का उस समय का जो राजा था, रोमी राजा सीजर, कैसर जिसे हम कहते हैं, वो उसने एक आज्ञा दी कि सभी लोगों का जो है सेंसस लेना चाहिए। सेंसस को क्या कहते हैं हिंदी में? जनगणना लेने का समय आ चुका है, तो इसकी जरूरत है, सभी अपने अपने गांव में जाए जहां आपका रजिस्ट्री है। And so Joseph and Mary went to their own hometown. तो इसलिए यूसुफ और मरियम उनके अपने गांव में जाते हैं। And Luke chapter 2 verse 7 says they could not find a place to stay. और लूका 2 के 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको रहने के लिए कोई स्थान मिलता नहीं है। And when you read that passage, it says they could not find a place or an inn to stay. और वहां लिखा है कि उनको रहने के लिए कोई जगह, कोई सराय में कोई कमरा या ऐसा कुछ नहीं मिला। But the word used there is kataluma, which basically means they could not find a guest room to stay. और वहां पे जो शब्द मूल भाषा में लिखी गई है, ग्रीक में, यूनानी भाषा में, वो है कटलुमा। उसका मतलब ये है कि एक गेस्ट के लिए जो कमरा हम देते हैं, वो कमरा उनको कहीं भी नहीं So मिला। they went to their own hometown. None of their relatives, none of their friends, none of the cousins gave them a guest room to stay in their home. तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो अपने गांव पहुंचे, तब तक उनके परिवार के किसी भी रिश्तेदार के घर पे इनको रहने के लिए एक जगह नहीं था। How many of you enjoy going to your back home, to your village or to your town, wherever you are from? Can I see your hands? आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है हम अपने गांव में जाए, वापस अपने गांव में जाना कितने लोगों को अच्छा लगता है? What if they said, when you reached there, they said, no, you can't stay here, there's no room for you. अब सोच कर देखिए, आप इतने दूर से अपने गांव जाते हो, लेकिन जब
जब आप वहाँ पहुँचते हो वो अपने रिश्तेदार आपसे कहते हैं सॉरी आपको यहाँ रहने के लिए जगह नहीं That है। is what happened to Joseph and Mary. यूसुफ और मरियम के साथ ऐसे हुआ Because they felt, perhaps the relatives said, you know, they're going to have a child, they're having a child, it's not their own child, so we don't want to do anything with this child and with this person. और हो सकता है उनके रिश्तेदारों ने ये सोचा हो कि ये तो गर्भवती है, ये तो इनका अपना आपस में बच्चा तो है नहीं, तो इसको हमारे घर में कमरा देना सही नहीं रहेगा, हो सकता है ऐसे सोचा So हो। what they did is, normally in during those times, their animals of the house, they would have their animals stay in the house in next to the door. तो उन समय में उस देश में क्या हुआ करता था, उन घर में जो जानवर रखते थे, पुराने समय में हर घर में जानवर होते, तो घर में जो जानवर है उसको दरवाजे के पास एक स्थान बनाया गया था जहां जानवर को रखते थे। They used to do that so that the animals would be protected from other wild animals, and also they themselves will feel warmth in the house. और इसीलिए वो ऐसे घर के अंदर ऐसे जगह बना रखते थे क्योंकि अपने जानवरों को अन्य जानवरों से बचाने के लिए और अपने उनको ठंड ना लगे उसके लिए वो ऐसे करते And थे। so their relatives said, listen, we don't have space, we have no guest room for you, you can stay with our animals. तो उनके रिश्तेदारों ने कहा देखिए आपके लिए हमारे पास कोई स्पेशल कमरा नहीं है, आप चाहो तो हमारे जानवरों के साथ रह सकते हैं। Imagine we went home सोच कर देखिए हम अपने घर जाते हैं and there's no home, there's no space in the house. और हमारे लिए घर में कोई कमरा नहीं, You can sleep outside with the sheep. और वो कहते हैं बाहर भेड़ों के साथ सो You जाओ, can sleep outside with the dogs. या तो फिर बाहर आजकल तो कुत्ते पालते हैं तो कुत्ते के साथ सो Nowadays, जाओ। nobody keeps the dogs outside, they keep them inside the house. So they will say, you can sleep with some other animals. तो आजकल कुत्तों को भी बाहर नहीं रखते, अंदर ही रखते हैं, तो बोलेंगे बाहर किसी भी जानवर के साथ सो जाओ अगर ऐसा हो तो। So Joseph and Mary did not have a place to stay in their own relative's house, they had to stay with their animals. तो देखिए यूसुफ और मरियम को उनके अपने रिश्तेदारों के अपने गांव में अपने घर में जगह नहीं था, उनको जानवर के साथ उनको उस रात सोना पड़ा। When the child was born in that place. और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा उसी स्थान पर पैदा हुआ। But what happened is when their relatives despised them, the angel of the Lord came to some shepherds far away. और देखिए क्या हुआ कि जब उनके अपने रिश्तेदारों ने उनको मदद नहीं किया तो स्वर्गदूतों ने दूर जो चरवाहे हैं भेड़ को चराते थे उनको प्रकट हुए। They came and said, listen, the Messiah is born. उनको प्रकट होकर उनसे बताया कि सुनिए संसार को बचाने वाला मसीहा पैदा हुआ A है। savior for the whole mankind is born. पूरे मानव जाति के लिए एक मसीहा एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। And they told them where they should go exactly. और स्वर्गदूतों ने उनको क्लियरली बताया कि आपको कहाँ जाना है ताकि आप उस बच्चे को So देख पाओ। Joseph and Mary are in the house. Their relatives are not looking at them. They're only the people to look at them are the animals in that house, in the room. अब देखिए यूसुफ और मरियम उस बच्चे के साथ उस कमरे के उस भाग में है जहां उनके रिश्तेदार कोई उनकी तरफ देखता नहीं है, सिर्फ उनकी तरफ देखने वाले कुछ जानवर ही है। And suddenly a group of shepherds came and said, we want to see the savior. और उतने में अचानक जो भी चरवाहों का एक झुंड आता है और वो कहते हैं वो छुड़ाने वाला मसीहा कौन है, कहाँ पैदा हुआ है, हम उसको देखना चाहते हैं। Sometimes the people we love will not love us back. देखिए कई बार हम जिन लोगों को प्रेम करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हो सकते हैं वो हमसे प्यार ना करें। Sometimes people that we want to respect, they will not give us room, they will not open doors for us. देखिए हम जिसको हम आदर करते हैं या हम जिसको आदर करना चाहते हैं, जिनसे हम अपने दिल में जिनको हमने बहुत बड़ा बना के रखा है, वो हो सकता है उनके लिए हमारे पास कोई कमरा नहीं या उनके दिल में हमारे पास कोई स्थान नहीं होगा। But God will bring certain other people to us. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ और लोगों को ले आता है। He will bring some people to love us and to take care of us and to provide for us. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ और लोगों को ले आता है ताकि वो हमसे प्यार करे और हमारे मदद करे, हमारे साथ दे। There was another group of people, they were far in the east. और वहाँ पे दूसरे एक झुंड के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोग जो बहुत ही पूरब में बहुत ही दूर एक जगह पे थे। They were called as a wise men. और उनको बुद्धिमान
ज्ञानी लोग करके बुलाया They गया used to है। study the stars. उनका काम था कि जो तारों को सीखना, तारों के बारे में सीखना, And that is why we have all these stars all around. और इसीलिए उसके कारण हमने तारों को टांगा है। And so they looked up and they saw a star. तो वो तारों को सीखते थे, वो आसमान में देखते थे, और एक दिन उन्होंने देखा एक नया तारा। They saw that star tells them that somebody, a great king is born. और क्योंकि वो तारों को सीखने वाले, समझने वाले थे, उन्होंने समझ लिया कि ये जो तारा है, इसका मतलब ये है कि एक राजा पैदा हुआ है। So they looked at the star and they followed the star. तो उन्होंने इस तारे को देखा और इस तारे के पीछे पीछे वो होने लगे ताकि वो देख पाए कि वो राजा कहाँ है। They took almost 2 years to get to the place where Jesus was. करीबन 2 साल लगा उनको इस तारे के पीछे पीछे होकर जहाँ यीशु था वहां तक And पहुंचने some में। historians say they were from India. और कुछ इतिहास को सीखने वाले, ऐतिहासिक जो सिखाने वाले लोग हैं, वो उनका ये मानना है कि ये जो ज्ञानी लोग तारे को देखकर तारे के पीछे गए, वो लोग भारत से थे। And I believe it might be some of my forefathers, great grandfathers. और मुझे लगता है कि वो हो सकता है मेरे कोई पूर्व मेरे कोई बाप दादे होंगे उनमें। It could be some of your great हो grandfathers. सकता है आप में से किसी के पूर्व बाप दादे होंगे। They traveled many months to get to वो Jesus. अनेक महीनों उन्होंने यात्रा किया और यीशु के पास वो पहुंचे। Just like many of you today. और आप में से अनेक लोगों के समान आज You have to wake up, put on your clothes, start your vehicle and come all the way here. आपको उठकर तैयार होकर अपने गाड़ी स्टार्ट कर यहाँ तक आना पड़ा। You know what the wise men did when they came and saw Jesus? आप जानते हो जब जो ज्ञानी लोग जब वो यीशु को देखे उन्होंने, तब उन्होंने क्या किया? They saw him in a house, a simple house. उन्होंने उसको एक बहुत ही साधारण एक घर में उसको देखा। And Joseph was a carpenter also. और देखिए यूसुफ का जो काम था वो था लकड़ी का काम करना। So he was not a special or a great man. वो कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था, कोई खास इंसान नहीं था। But they came to this carpenter's house. वो इस लकड़हारे के घर आते हैं They saw this little child और इस छोटे बच्चे को देखते हैं and they worshipped him. और उन्होंने इसके सामने उसकी आराधना की, उसकी दंडवत की। Even as you are here also, that is what you also are called to do. देखिए आज जब आप यहाँ हैं, आपको भी यही करना है। We are called to worship Jesus. हमारी बुलाहट क्या है? हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उसकी आराधना करें। But why do we remember Jesus' birthday, a young small boy who was born? लेकिन यीशु का जन्मदिन हम क्यों स्मरण करते हैं? Not because he was born. वो इसलिए नहीं कि वो जन्मा था। We remember him because he died and he rose again. हम इसलिए उसका जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि वो जन्म लिया, हमारे लिए मरने के लिए वो मरा और वो जी उठा। You see, in this world we will see a lot of people who will do so many miracles in this world. देखिए संसार में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बहुत बड़े-बड़े चमत्कारों को करेंगे। We will worship them, we will respect them, we will welcome them into our house. हम उनको आदर देंगे, हम उन्हें हमारे घरों में बुलाएंगे, हम उनकी आराधना करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। But there is something very special about Jesus. लेकिन यीशु के बारे में कुछ खासियत है। Jesus came into this world to die. यीशु इस संसार में क्यों आया? वो मरने के लिए, एक ही उद्देश्य था कि मुझे लोगों के लिए मरना है। You know, in this world we will hear about so many babies who grow up to become kings. देखिए हम इस संसार में बहुत सारे छोटे बच्चों के बारे में हम सुनते हैं जो बड़े होकर राजा बनते हैं। But this is the first king and the only king from heaven who left everything of his heavenly glory. He came down into this world and became a small baby. लेकिन यही एकमात्र एक राजा है जो स्वर्ग का राजा, जो इस संसार पे एक मनुष्य का रूप लेकर उसके स्वर्ग की सारी महिमा को तज कर, राजा की महिमा को तज कर एक बच्चा होकर इस संसार में He आता है। lived in this world all these many years, for 33.5 years. और 33.5 साल तक उस संसार में वो एक मानव रूप में जिया। You know, as I was reading the Bible a couple of days back, I was just amazed at the fact that Jesus would allow himself to
go through the different development stages of young boys. अब देखिए, जब मैं बाइबल कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मैं बहुत ही हैरान हो गया ये पढ़कर कि यीशु जो स्वर्ग का राजा है, उसने अपने आप को इतना दीन किया कि ये मानव रूप में, एक मानव लड़के के रूप में, उसके एक लड़के के जीवन में जितने जितने शरीर के डेवलपमेंटल चेंजेस या शरीर में जैसे बढ़ोतरियां होती है, जैसे बदलाव आती है, ये सब उसने अनुभव करने को अपने आप को अनुमति दी है। He could have come as a 33-year-old man, do all that he wanted to do and go back to heaven. वो चाहे तो ऐसे ही प्रकट हो सकता था, एक 33.5 साल के एक नौजवान के रूप में प्रकट होकर जो भी उसने चमत्कार करना था करके वो जा सकता था। But he went through all the developmental stages. Just imagine Jesus hitting puberty. लेकिन उसने अपने सारे जीवन के हर, शरीर के हर बदलाव के अंदर से अपने आप को गुजरने दिया। You know, a number of years ago, there were two people, Peter Stoner and Robert Newman. They wrote a book called Science Speaks. और देखिए, कुछ साल पहले दो लेखक थे, उनका नाम थे पीटर स्टोनर और रॉबर्ट न्यूमन। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था विज्ञान बोलती है। And the book was based on the science of probability. और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो आधार था, What are the chances of anything happening? कि कोई चीज अगर होनी है तो उसका होने का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, उसके आधार पर। In the Bible, there are so many prophecies written in the Bible. देखिए, बाइबल में अनेक भविष्यवाणियां लिखी गई है। And these prophecies happened much before Jesus was born about Jesus' life and death and resurrection. और ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले यीशु के जीवन के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसके काम के बारे में सब कुछ भविष्यवाणियां अलग नबियों के द्वारा हुई थी। Just imagine, like about my life, if it was hundreds and hundreds of years back, it was written that so and so person would be born in this land, he would live in this manner, he would preach in this manner, he would die in this manner. Just imagine somebody prophesying hundreds and thousands of years before. अब सोच कर देखिए, मान लीजिए मेरे जीवन के बारे में किसी ने भविष्यवाणी किया 100 साल पहले, हजारों साल पहले मेरे बारे में भविष्यवाणी किया कि वो ऐसे जन्मेगा, वो ऐसा दिखेगा, वो ऐसे करेगा, वो इस तरह से प्रचार करेगा और फिर बाद में वो इस उम्र पे मरेगा, इस तरह से भविष्यवाणी किया हो। There were so many prophecies, close to 70 prophecies in this Bible about Jesus' life and death. देखिए, यीशु के जन्म और यीशु के जीवन, उसके मृत्यु के बारे में अनेक भविष्यवाणियां इस बाइबल में यीशु के जन्म से बहुत सालों पहले अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है। So what he did is they took 8 prophecies. तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो लेखक हैं, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर बाइबल में से सिर्फ 8 भविष्यवाणियों को उठाया। अनेक भविष्यवाणियों में से सिर्फ 8 को उठाया। They took 8 prophecies and they began to check what are the chances of these 8 prophecies happening in only one person's life. और इस 8 भविष्यवाणियों को उठाकर, इस 8 भविष्यवाणियों से के द्वारा उन्होंने वैज्ञानिक रूप पर एक पढ़ाई की, एक चेक किया कि ये 8 भविष्यवाणियां एक व्यक्ति के जीवन में यदि पूरा होना है तो उसके चांस क्या है, कितना चांस है कि ये हो पूरा हुए एक ही व्यक्ति के। They said it is 1 raised to 10 to the power of 17 or 10 plus 17 zeros. और उन्होंने उस सीख के बारे में बाद उनको ये ज्ञान हुआ, उसके ये पता चला, उसका रिजल्ट ये था कि ये अगर ऐसे पूरा होना है तो उसका जो चांस है या ऐसे होने की जो संभावना है वो है 10 and 17 शून्य वाला एक अंक, मतलब एक के साथ 17 शून्य में एक बार होने का संभावना हो। Just to give you a visual example, आपको एक उसको समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। These people, what they did was they compared it with the size of Texas, a state in the US. और इन लोगों ने क्या किया, इसको टेक्सास नाम का एक राज्य है अमेरिका में, उसके साथ उन्होंने तुलना किया। But since we are in India, I want you to compare it with India. क्योंकि हम भारत में हैं, हम उसको समझने के लिए भारत
के साथ उसे तुलना करेंगे। So I want you, if you have a 1 rupee coin, can you take out a 1 rupee coin, hold it in your hand? अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, उसे हाथ में लेकर उसे पकड़ कर देखिए। Nowadays nobody carries 1 rupee coin. If you don't have 1 rupee coin, hold, take out a 2 rupee coin. Just take out a coin that you have in your purse. Just take it out. आजकल कोई 1 रुपए का सिक्का पकड़ता नहीं है, 2 रुपए का सिक्का हो उसे ले लीजिए, उसे हाथ Okay? में पकड़ We're going to कर do देखिए। an experiment right now, okay? और अभी हम एक अभ्यास करने वाले हैं। All right? You got a 1 rupee coin or a 2 rupee coin in your hand, okay? Everybody? Okay? सबके Alright. हाथ में एक सिक्का है, 1 या 2 रुपए का कोई भी You, सिक्का है। you need to do it so you can understand it, okay? Now I want you to close your eyes for a moment. ये समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। Now I want और अपने आंखों को बंद करें। everybody close your eyes, and I want to ask you, how many of you have been to Punjab? Can you stretch out your hand? Just close your eyes. Keep your eyes closed. I want to see your hands. Punjab, okay. आप में से सभी लोग अपने आंख बंद करें और मुझे बताएं कि कितने लोग पंजाब में गए। Haryana, हरियाणा में कितने लोग गए? Jammu and Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर में कितने लोग गए? हाथ Himachal, हिमाचल में कितने लोग गए? हाथ खड़ा and करें। some parts of Uttar Pradesh. और उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग में गए हैं, हाथ खड़ा करें। Okay, that's about the size of Texas right now, okay? अब देखिए टेक्सास का जो साइज है, वो जो देश इन्होंने पढ़ाई के लिए लिया था, उसका साइज इतना बड़ा है। So, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश so, और हिमाचल, ये सब मिलकर जितना बड़ा होता है उतना बड़ा है so टेक्सास। you are standing in this large place right now. अब देखिए आप इतने बड़े एक देश में, एक प्रदेश में आप अभी खड़े हैं। Okay, I want you to picture this. Stretch out your hand with the coin, अब अपने हाथ में जो सिक्का है उस सिक्के के साथ हाथ खड़ा करें। and I want you to drop it down. अब मैं चाहूंगा कि आप उसे नीचे जमीन पे छोड़ दें। Okay, so now don't open your eyes. Don't open your eyes. Just drop it down. I know somebody is like, oh no, I lost my 1 rupee coin. No, don't worry. Just let it be. नहीं, आंखें ना खोले। आपको ये ना सोचे कि हाय मेरा सिक्का गिर गया या खो गया, नहीं ये ना सोचे। Now, आप आंखें बंद ही रखें। Now you heard the coin falling. अब देखिए आपने सुना, वो सिक्का गिरने की आवाज को आपने सुना। You know, if these coins, if all these lands, all these states were filled with coins way up to your knees. अब देखिए जितने देश का नाम अभी हमने बोला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, है ना, ये सभी जगह का जितना बड़ा ये जगह है, इतने बड़े जगह में सिक्कों से भरा हो, अपने आपके घुटनों तक ये इतना बड़ा जगह सिक्कों से भरा हो। You are standing inside a pile of coins, of 1 rupee coins, all the way up to your knees. आपके घुटनों तक के सिक्कों के एक बहुत ही बड़े एक क्या कहते हैं, उस ढेरे के अंदर आप खड़े हो। And I take one of the coins and I draw a black mark and I throw it into that place. और मैं एक सिक्का उठाऊंगा उसमें मैं एक ब्लैक कलर का उस पे कुछ कलर लगाकर मैं उसी के अंदर उसे वापस फेंक दूं। Can you open your eyes now? अब आप अपने आंखों को खोलें। Can you find that coin? If you are standing knee deep in coins. अब इतने बड़े जगह पे घुटने तक आप सिक्कों के अंदर खड़े हो और जो सिक्का मैंने फेंका उस सिक्के को आपको ढूंढना है। आप ढूंढ पाओगे? Would you find it? क्या आप उसे Can you ढूंढ find the coin that you dropped just now? अभी जो सिक्का आपने गिराया उसको आप ढूंढ पाओगे अगर इतने बड़े एक इसमें खड़े हो? Some of you say, I have trouble finding my socks in the morning. I have trouble finding the car keys in the morning. आप में से कुछ लोग बोलेंगे सुबह उठ के मेरे क्या कहते हैं जुराब को ढूंढ निकालना मेरे लिए मुश्किल है, गाड़ी के चाबी को ढूंढ निकालना मुश्किल है। This man said, they did the study and they said, that is how much chance one person is able to fulfill the 8 prophecies that were written in the sacred scriptures many years back. तो ये पढ़ाई करने वाले इन वैज्ञानिकों ने ये बोला कि 8 भविष्यवाणी एक व्यक्ति के अंदर अगर पूरा होना है तो उसकी संभावना ऐसी है। The death of Jesus was one of the most cruelest forms of punishment. यीशु का मृत्यु जो है सबसे क्रूर रीति से जो एक सजा दिया जाने वाला एक सजा था। And it was written how he would die very clearly as a prophecy many years before he died. अब देखिए यीशु के मृत्यु के अनेक साल पहले, सैकड़ों साल पहले क्लियर रीति से लिखा था कि उसका मृत्यु कैसे होना है। Jesus was born in Israel. He was an Israelite. देखिए यीशु का जन्म इजराइल में हुआ था, वो इजरायली था। And during that time, the strictest form of their punishment was stoning a person to death if they committed a crime. और उस वक्त जब यीशु का जन्म हुआ, उस समय का
उस समय का जो दंड, जो कहते हैं सजा जो है, वो था एक व्यक्ति को मार डालने का, पत्थर फेंक के But मारते the थे। prophecies in the Bible says that the Messiah would be pierced in his hand and he would be pierced in his feet. लेकिन भविष्यवाणी, जब समाज में पत्थर फेंक के मारने का प्रथा था, उस समय पे भविष्यवाणी होती है कि संसार को छुड़ाने वाले को मार दिया जाएगा, कीलों को हाथ में और पैरों पे टोक कर। In fact, a couple of years before Jesus came into the scene, that was the only form of punishment for the Israelites. अब देखिए, यीशु के जन्म के कुछ समय पहले तक इजरायलियों के बीच में जो है एक व्यक्ति को मारने का जो रीति था, मार डालने का रीति, वही था पत्थर फेंक के मार But then डालना। the Roman Empire came into power. लेकिन रोमी साम्राज्य एकदम से वो अधिकार में आते हैं, And they began to have another form of punishment. और उन्होंने बोला कि नहीं, लोगों को मार डालने के लिए एक दूसरा सजा हम तैयार करें। And their form of punishment was crucifixion, where they would pierce their hands into a piece of wood, pierce the feet into a piece of wood. और उनका सजा देने का तरीका था कि एक व्यक्ति को कीलों से लकड़ के ऊपर ठोक कर वो मारते थे। And when Jesus came into this world, और जब यीशु इस संसार में आया, the prophecies that were written hundreds of years तो before, देखिए सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, to be fulfilled, a new person had to come in power. वो भविष्यवाणी पूरे होने के लिए एक नए साम्राज्य को ही अधिकार में आना जरूरी था। God brought an entire empire into power. परमेश्वर ने पूरे साम्राज्य को अधिकार में ले आया। And after the death of Jesus, in a couple of years, that entire empire disintegrated. और यीशु के मृत्यु के बाद कुछ ही सालों के अंदर वो पूरा साम्राज्य इस संसार से खत्म भी हो गया। The Israelites, the Jews, when they caught Jesus and they wanted to punish Jesus, they could not punish him because they were under the Roman rule. देखिए, जब इजरायली चाहते थे कि हम इस यीशु को दंड दे, सजा दे, इसको मार डाले, वो उनकी तरीके से नहीं मार सकते थे क्योंकि रोमी साम्राज्य उस वक्त अधिकार में थे। They caught him and they brought him to the Roman emperors, the Roman rulers, and they said, "We want him dead. Kill him." और रोमी सम्राट के सामने यीशु को ले आते हैं और सम्राट से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको मार डाले, हम चाहते हैं कि ये मर जाए। And that is why they brought them to the Roman emperor. और Brought Jesus to the Roman emperor. इसलिए वो यीशु को इस रोमी सम्राट के सामने ले आते हैं। And when the Roman emperors look at Jesus, when the Roman emperors try Jesus, they could not find anything wrong with him. और ये सम्राट जब यीशु को देखते हैं, यीशु के सवाल पूछते हैं, यीशु के बारे में पूछताछ करते हैं, वो कहते हैं इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये बेगुनाह है। Even the Jewish people, the Israelites, they found nothing wrong with him. They just hated him. और इजरायलियों ने भी, यहूदियों ने भी यीशु में कोई कलंक नहीं देखा, उसमें कोई गुनाह नहीं देखा, बस उनका यही था कि वो बस उससे नफरत You know why करते they hated him? अब जानते हो क्यों उससे नफरत करते थे? Because Jesus was against religion. क्योंकि यीशु धर्म के खिलाफ था। He did not like the rules of the religion. वो धर्म के जो रीति रिवाज थे उससे वो नफरत, उसे नहीं अच्छा लगता। The rules that were tying people down from meeting God, the Father, meeting God, their Maker. देखिए, धर्म के रीति रिवाज जो है वो इंसान को परमेश्वर, उनके बनाने वाले, उनके सृजनहार से मिलने से रोक के रखती है। And so when Jesus was brought before the Jewish leaders and elders and the priests and the Pharisees, they could find nothing wrong with him. और इसलिए जब यीशु को न्याय के लिए, जब ये इनके यहूदियों के जो नेतृत्व में जो लोग थे उनके सामने ले आया, इन लोगों ने कोई गलती यीशु में वो पा नहीं पाए। So they brought him to the Roman emperor. The Roman emperor said, "I can't find anything wrong with him." और इसलिए रोमी सम्राट के सामने ले आते हैं। रोमी सम्राट कहता है मैं इसमें कोई गलती नहीं देख पा रहा। The only reason he died was because he was the savior of the world. और यीशु की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो इस संसार का उद्धार करता था। Every one of them who tried him, every one of them who looked at him, they said there is nothing wrong with him, but we want to punish him. उनमें से हर एक व्यक्तियों ने, जिन्होंने उसका न्याय करने की कोशिश की, सभियों ने यही बोला कि ये बेगुनाह है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम इसको दंड देंगे। There's a reason why they wanted to punish him. एक कारण था क्यों वो उसे सजा देना चाहते Because थे। we
in this world we are born as sinners. क्योंकि हम जो मनुष्य है इस संसार में पाप में जन्म A लेते हैं। child who is born into this world does not need to be taught how to lie. एक बच्चा जो इस संसार में जन्म लेता है उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे झूठ बोलना He or she does not need to be taught how to be selfish. उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सिर्फ अपने लिए सोचो और औरों के लिए मत सोचो। सिखाने की The जरूरत नहीं है। Bible says all have sinned. वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सभीयों ने पाप किया, सभी मनुष्य ने पाप Each किया। one of us experienced that sin nature within us. हमें से हर एक व्यक्ति वो पाप का जो स्वभाव है हमारे अंदर हम अनुभव करते हैं। How many times we wanted to do good but we could not do the good that we want to do. कितने बार हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम भले काम करें, अच्छे काम करें, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाते। But even if we do any good, we will never be good enough for ourselves and for God. लेकिन हम चाहे हम अच्छा ही काम करें और कोशिश करके अच्छा काम करते भी रहे तो भी परमेश्वर के नजरों में हम अच्छे नहीं होते। It's because we feel so sinful within ourselves. क्योंकि हम पाप में हैं, पापी हैं। And we try different things. और इसीलिए हम अलग-अलग बातों करने की कोशिश करते हैं। But we हैं। still feel dirty and we still feel very sinful within ourselves. लेकिन फिर भी तो भी हमारे अंदर हम अपने आप को मैले, गंदे और अंधकार में भरे हुए हम महसूस करते हैं। The Bible says all have sinned, that means I have sinned. और बाइबल में लिखा है कि सभी व्यक्तियों ने पाप किया, मैंने भी पाप किया। And the Bible says the punishment for sin is death. I deserve death. और वचन में लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हमें से हर एक व्यक्ति मृत्यु के लायक है। Many times we punish ourselves because we feel that we need to be killed, we need to die. और कई बार हम अपने आप को दंड देते हैं। We look at the mirror, we do not like ourselves. हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हमें अपना तस्वीर हमें अच्छा नहीं लगता। We do not like the relationships that we are in. हमारे जीवन में जितने रिश्ते हैं हम उन्हें पसंद नहीं We करते। experience death in different phases of our life. हमारे जीवन के अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग समयों में एक मृत्यु का जो मरण का जो अनुभव है वो हम महसूस करते हैं। We try to get out of it doing different things. We cannot get out. ये सब से बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए अलग-अलग काम को, अलग-अलग बातों को हम करने की प्रयास करते, कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसमें से छुटकारा नहीं पाते। This is where Jesus comes in. और इसीलिए यीशु आता है। Religion says you need to do something. धर्म हमें सिखाती है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। Jesus said, I did everything for you. यीशु हमसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने खुद कर You दिया। don't have to experience death in your body. आपके शरीर में, आपके जीवन में मृत्यु को महसूस करने की जरूरत नहीं है। You don't have to experience death in your relationship. आपके रिश्तों में आपको मृत्यु को महसूस करने You don't की have to जरूरत नहीं है। experience death in any facet of your life. आपके जीवन के किसी भी भाग में आपको मृत्यु को अनुभव करने की On जरूरत this नहीं है। Christmas day, all you need to look at Jesus, the cross of Jesus. इस क्रिसमस के दिन आपको सिर्फ यीशु को देखना है, यीशु के उस क्रूस की ओर देखना Do you है। know they stripped him naked? आप जानते हो उसको उन्होंने उसके कपड़े फाड़ डाले। They pierced his hands and they pierced his feet. उसके हाथों में, पैरों में कीले ठोके। They spat on him, they slapped him. उसे थप्पड़ मारा, उसे उसके ऊपर थूका उन लोगों ने। They put a crown of thorns upon his head. उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा। They made him stand between two people who had done great sin in their life. और दो चोरों के बीच में, दो डाकुओं के बीच में यीशु को खड़ा किया। All he did is because of you and me. वो उसने क्यों ये सब सहन किया? आपके लिए और मेरे लिए। I deserve to die. मैं मरने के लायक हूँ। But when I look at the cross, लेकिन जब मैं क्रूस को देखता हूँ, I know I don't deserve to die any longer. अब मुझे पता है कि अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। Jesus died for me. क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा। The Bible says the gift of God is eternal life. वचन में लिखा है परमेश्वर का जो तोहफा है, जो भेंट है हम सब के लिए, वो है अनंत काल का जीवन। It is not the gift of religion. वो परमेश्वर धर्म का एक गिफ्ट नहीं देता हमें। It is a gift of a relationship. वो एक रिश्ते का गिफ्ट देता है। Jesus came into this world यीशु इस संसार में आया so that we can know the Father, we can know God again, once again. ताकि हम परमेश्वर के साथ एक और बार हमारा रिश्ता बने। You know, Jesus died and on the third day he rose up from the grave. आप जानते हो यीशु मरा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से, कब्र में से जी उठा। In any country, if they want to break or if they want to destroy an uprising or a group of people who are rising up,
और किसी भी देश में, किसी भी राज्य में यदि आप किसी झुंड के लोगों को नाश करना चाहते They will हैं, catch the Baba, or they'll catch the main person, and they will kill him, or they destroy him, or they put him in behind bars. तो वो उस झुंड के जो अगुवे है, जो नेता है, उनको पकड़कर उनको मारते हैं, उनको जेल में डालते हैं। That is what they tried to do with Jesus. They crucified him, and they thought he's dead. उन्होंने यीशु के साथ यही करने की कोशिश की। उन्होंने यीशु को मार डाला, क्रूस पे चढ़ाया और उन्होंने सोचा अब तो ये मर गया। But he rose up from the grave. लेकिन तीसरे दिन वो कब्र में से When he जी उठा। rose up from the grave, his disciples were happy. Now Jesus is going to stay with us forever. जब वो तीसरे दिन जी उठा, उसके चेले खुश हो गए। उनको लगा कि अब तो ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। He said, "No, I am going, but I'm sending the Holy Spirit down." लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे The पास Holy भेजूंगा। Spirit is God Himself. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर खुद है। And that is why Jesus says, "I will be with you forever." और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग हमेशा रहूंगा। Jesus is now in heaven. यीशु स्वर्ग में है। But the Holy Spirit, because of the Holy Spirit, we can experience Jesus every day. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के कारण हम हर एक दिन यीशु को अनुभव करते हैं। You know what happened after Jesus died and rose again? आप जानते हो यीशु के मरने के, मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद क्या His हुआ? disciples were afraid. They ran. They were sitting behind closed doors. उसके चेले डरे हुए थे और बंद कमरों के अंदर वो छिप के बैठे But when थे। the Holy Spirit came down, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आया, they did not live in fear. They opened the doors and faced the world. फिर उसके बाद उनको डर नहीं लगी। वो दरवाजे खोलकर वो संसार का सामना करने You लगे। see, the Bible is not just information. All that I gave you is just information. देखिए बाइबल में, ये बाइबल कोई एक ज्ञान का पुस्तक नहीं है। मैंने जो भी आपको दिया ये सिर्फ ज्ञान है। You have received information. आपको ज्ञान मिला, But God is not information. God is not limited to information. लेकिन परमेश्वर सिर्फ ज्ञान नहीं है। परमेश्वर सिर्फ ज्ञान के अंदर सीमित नहीं है। God wants you to have an experience with Him. परमेश्वर चाहता है कि आपका उसके साथ एक अनुभव हो। God wants you to have a relationship with Him. वो चाहता है कि आपका उसके साथ एक रिश्ता हो। And when He was on this world, there were different things, miracles that He did in this world. जब वो इस संसार में था, उसने इस संसार में बहुत अलग-अलग चमत्कार किए। But the greatest miracle is that He comes into our lives and makes us experience Him daily in our daily life. लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो हमारे दिल में, हमारे हृदय के अंदर वास करने आता है और हर रोज प्रतिदिन हम उसके साथ बात कर सकते हैं, हम उसके साथ एक रिश्ता रख सकते हैं। This Christmas day, I want you to not go with knowledge about the birth of Christ. मैं चाहूंगा कि आज के क्रिसमस के दिन आप सिर्फ यीशु के बारे में एक ज्ञान के साथ वापस ना I जाएं। want you to go with the experience of Jesus. मैं चाहूंगा कि आप यीशु के साथ एक अनुभव के साथ वापस So जाएं। for a moment, shall we close our eyes? एक क्षण के लिए अपने आंखों को हम बंद करें।